नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मुनमुन भट्टाचार्य। You're watching Dr. Speak. It's a live call-in show where you can call us and ask your questions on COVID-19. An expert panel of guests will be joining us and answering those questions for you. You can note down the numbers that we are flashing on our screens, and you can call us on those numbers. The number is right there. Besides that, you can also log on to DD News' Facebook page and post your queries under the live link of Dr. Speak video that you will be seeing there. और सबसे बड़ी बात मुनमुन, अगर देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से जो ट्रेंड है वो काफ़ी कम हुआ है, जो संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी कम है और हम कोरोना से जारी इस जंग में बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और हर दिन संक्रमित मामलों में कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,73,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। देश में अब तक कोरोना से 2,51,78,011 लोग ठीक हो चुके हैं और जो रिकवरी रेट है वो 90.80% हो गया है। इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में आप हमारे विशेषज्ञों से अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 233-87-031। दिल्ली के बाहर के लोग 011 दिल्ली का कोड भी लगा सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर, इस पर आप हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जो कि विशेषज्ञ राय देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर GC खिलनानी, जो कि फॉर्मर हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, दिल्ली एम्स के, और डॉक्टर मोहम्मद शाबाह सिद्दीकी, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स रायपुर के। मुनमुन। Absolutely. So let's begin with an assessment on the current situation. Dr. Sinha, what is your assessment of the overall COVID-19 situation in the country? Because less than 2 lakh daily new cases have been reported since the last 2 days. So there has been a continuous decline in active cases. The daily positivity rate is 8.36%. Less than 10% positivity rate has been there for the 5th straight day. Decline of more than 1 lakh cases witnessed in the last 24 hours. Good afternoon, Munmunji. I think it's a good news for country that we have decreased number of patients now, and as you said that there is a recovery rate is also very good. It's about 90%, and we had around 1,73,000 corona positive patient in last 24 hours. And if you see daily, so we had less number of patients in Delhi also. We have around 1,100 patients in last 24 hours. So that's good news for our country, and it may be effect of lockdown. So we have to see what happens next week, because Delhi is going to open and partially open in certain sectors, and so we have to see next week how it goes in next 7 to 10 days. So another thing I would like to tell here, that in this way we have seen mostly patients are suffering with the middle age group, between 18 to 45 age group. So that was another thing to explain, and I would like to tell here, this is really going out for working and they are in jobs. And another important point, we understand that some of elderly person have already been vaccinated, so, and they are mostly inside the home, so there is a less number of person infecting in this group. And we have also seen that persons who have received the vaccine, they either have very less number of infection, or if they had infection, then it was very mild. So this is from my side. Right. जी, प्रोफेसर खिलनानी, आपसे जानना चाहेंगे कि भले ही इस समय मामले प्रतिदिन कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां ऐसी नहीं है कि लोग बेहद रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार उसी तरीके से बना हुआ जैसे वो कभी न कभी पीक पर था, क्योंकि संक्रमण की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं चेंज नहीं हुई हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे कि एकदम से निश्चिंत हो जाने वाली स्थिति नहीं, खासकर ग्रामीण इलाकों में हम देख रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर उतनी ज़्यादा लोगों में कोविड प्रोटोकॉल या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो हो पाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से।
ये कोरोना कहीं भी गया नहीं। ये दिल्ली की बात करें तो लॉकडाउन हो गया, बहुत जगह पे लॉकडाउन हो, जिस वजह से कोरोना के नंबर्स कम हुए। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट ट्रायंगल बनाते थे, हमें ये पढ़ाया जाता था। तो एजेंट जो है वो है कोरोना वायरस, जो कि म्यूटेट हो रहा है, और हमें पता है कि अब जो यूके म्यूटेंट है B117 वो प्रिवलेंट है, वो ज़्यादा कंटेजियस है और ज़्यादा लीथल भी है, इसलिए मौत की दर पूरे हिंदुस्तान में, स्पेशली दिल्ली पंजाब में बढ़ गई थी। तो एजेंट कहीं नहीं गया, एजेंट हमारे साथ है। जो होस्ट है, जैसे डॉक्टर सिन्हा ने बोला कि जो एल्डरली लोग थे, या तो वो वैक्सीनेट हो गए या उनको इन्फेक्शन हो गए, उनकी मूवमेंट कम है, लेकिन कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिस वजह से तो यंगर पॉपुलेशन अभी अफेक्ट हो रही है, और वही पॉपुलेशन है जो बाहर जाती है, काम भी करती है। एनवायरनमेंट का इस बीमारी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हमने पिछली बार हमें उम्मीद थी कि गर्मी में शायद कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन उसकी कुछ कमी नहीं आई। लेकिन ये है कि जो वैक्सीन है वो सबसे बड़ा हथियार है, जो कि बहुत ज़ोर शोर से हमारे देश में चल रहा है। लेकिन वैक्सीन की कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं, इन्फेक्शन मतलब उसकी एफिकेसी 100% नहीं होती है, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी एफिकेसी 100% है, ये तो हमें पता है। चाहे B117 म्यूटेंट हो, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो, चाहे वो ब्राजीलियन स्ट्रेन हो, चाहे वो यूके स्ट्रेन हो, बचाव का तरीका हमारे हाथ में। और वो सबसे इम्पोर्टेंट उन तीनों तरीकों में से, जो सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन और मास्क की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि अब ये, हालांकि पिछले साल भी ये पता लग गया था कि ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न है, मतलब कि हवा में होता है। ऐसे नहीं है कि आप सोचे कि किसी जगह आप अकेले हैं तो मास्क अपना नीचे कर लें। ये कोरोना वायरस हवा में 3 से 16 घंटे तक रहता है। अगर आप पब्लिक वॉशरूम में जा रहे हैं और उससे पहले किसी ने जाके वहाँ उसको यूज़ किया है और मास्क उतार दिया है, और अगर वो कोरोना से संक्रमित था, तो उस वॉशरूम में वायरस जिंदा रहेगा। और नेक्स्ट आदमी जो जाता है और वो ये सोच के कि अब तो मैं अंदर हूँ एक बंद वॉशरूम में, तो अपना मास्क नीचे कर लेता हूँ, ज़रा अच्छे से सांस लेता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। हम लोगों को ये समझना है कि कोरोना दुनिया में अभी है, भारत में अभी है, कम हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है कि हमने बिहेवियरल चेंज किए इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन हमेशा तो कंटिन्यू नहीं रह सकता, इसलिए आवश्यक है ये समझना कि हमने अपने अपने आप को बचाव करना है। और उसको वैक्सीन जब तक पूरे देश को नहीं लग जाती 70-80% लोगों को, जिसमें कि मैं सोचता हूँ कि कम से कम 6 महीने साल अभी लगेगा, तो हमें अपने आप को बचा के रखना है। और सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले जो सोच रहे थे कि सब वृद्ध लोग जो है ना वो सीरियसली अफेक्ट होते हैं, लेकिन अब तो सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं, यंग डेथ्स भी बहुत हो रही है। और इस पर्टिकुलर जो आउटब्रेक है, जो सेकंड वेव जो आई है, इसमें हमने देखा कि जो आईसीयू में जो पेशेंट जाते हैं उनमें उनकी मौत की दर बहुत ज़्यादा है। वो 40-40 दिन जो है ना नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे वगैरह पे रहते हैं, लेकिन उनका बचना की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। तो ये वायरस की जो स्ट्रेन है, ये खराब स्ट्रेन है मेरे ख्याल से, इसलिए हम सबको प्रण लेना चाहिए, एक क्रांति की तरह लाना चाहिए कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम सिर्फ तीसरी वेव का इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा। Right, Dr. Khalnani, questions have started coming in on our Facebook page. Dr. Siddiqui, one question has come that Mantosh Chaudhary is asking if a person has recovered from COVID after taking medicines and 15 days isolation, will his rapid antigen test come negative on a retest, or can it come positive again? Would you like to say if such tests are required post recovery in case of mild cases particularly? Sorry, this question to you want me to answer this question? Dr. Siddiqui, would you like to answer this? Yes. Okay. Okay. So the answer, you have actually given it rightly said that is that test required? Yes, the answer is straightforward, is no. Right, the tests are not required is the answer. The test is not required, especially there are a lot of people. In fact, there are institutions who have been asking, before joining you need to give a negative test. We assure them that okay, you have to
you have to actually assure them that these tests are not required. They are absolutely not necessary once you have recovered. जैसा डॉक्टर गुलेरिया ने और हमारे होम आइसोलेशन के गाइडलाइंस ने बता दिया है क्लियरली कि अगर आपको 8वें दिन 7वें दिन के बाद फीवर नहीं आता है, यू हैव कंप्लीटेड योर 10 days ऑफ आइसोलेशन, यू आर फ्री टू गो, देयर इज नो नीड फॉर टेस्ट. और जहां तक रैपिड एंटीजन टेस्ट की सवाल है, रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आएगा और उसको करने की जरूरत नहीं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली द आंसर इज दिस इज द टेस्ट इज अननेसेसरी. जी प्रोफेसर सिन्हा, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये होता है कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन कितना ठीक हुए हैं. बहुत सारे लोग कोमॉर्बिड कंडीशन में होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं. बहुत सारे, चाहे वो डायबिटीज़, किडनी या अन्य चीज़ों के पेशेंट हों, ठीक होने के बाद फिर क्या लोगों के मन में होता है कि हम जांच कराएं. ये टेंडेंसी कैसी है? और साथ ही साथ जो नॉन कोमॉर्बिड कंडीशन है या जो ठीक ठाक स्वस्थ आदमी हैं, उनके लिए क्या राय देंगे, और कोमॉर्बिड कंडीशंस जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या राय देंगे? देखिए, इसको इस तरह से समझना होगा कि पेशेंट किस स्टेज में है. हम लोग इस बीमारी को एसिम्प्टोमेटिक डिजीज, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज एंड सीवियर डिजीज के हिसाब से देखते हैं. मोस्टली वी हैव सीन कि अबाउट 85% लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं. उनमें हाई ग्रेड फीवर होता है, कफ होता है, सोर थ्रोट होता है, बॉडी एक होता है और सैचुरेशन लेवल उनमें नॉर्मल होता है, मोर देन 95% रहता है. अब ऐसे पेशेंट को हम लोग घर में रखते हैं, होम आइसोलेशन करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप टेलीफोन से अपने डॉक्टर से बात करते रहिए. और कुछ दवाएं होती हैं, जैसे पैरास्टामोल है, उसको हम लोग फीवर के लिए दे देते हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं और कहते हैं आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते रहिए. अगर आपके ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है तो अपना ब्लड प्रेशर देखते रहिए. और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 93%, 92% से नीचे आने लगता है तो उनको हम लोग एडवाइस करते हैं, अगर आपके पास घर में ही ऑक्सीजन की सुविधा है तो घर में ले लें या फिर नियर बाय कोविड सेंटर में आए. और इस स्टेज को हम लोग मॉडरेट स्टेज कहते हैं, जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 पर मिनट हो जाता है और उनको जोर जोर से सांस फूलने लगती है, छाती में दर्द होने लगता है, फीवर रहता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन लोअर हो जाता है और ब्लड प्रेशर लोअर होने लगता है, अल्ट्रासेंसोरियम के भी सिम्टम्स हो सकते हैं. तब उनको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करके और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स देते हैं और साथ में जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली वी ट्रीट. एंड सिमिलरली अगर पेशेंट इससे रिस्पॉन्ड नहीं करता है और उसका काफ़ी कम हो जाता है सैचुरेशन लेस देन 80%, देन हम लोग इस तरह के पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं. तो डिपेंड करता है पेशेंट को किस अवस्था से हम लोगों ने डिस्चार्ज किया है. अगर पेशेंट को माइल्ड डिजीज है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर कोविड पॉजिटिव आया है, तो उन तरह के मरीजों को हम कहते हैं कि आप 10 दिन तक होम आइसोलेशन करें और उसके बाद अगर आपका लास्ट 3 days में फीवर नहीं आया है या आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप होम क्वारंटाइन से बाहर आ सकते हैं. और अगर नहीं ठीक होते हैं तो 14 days तक हम लोग 2 हफ्ते तक कहते हैं आप होम क्वारंटाइन में रहें. और ये अधिकतर देखा गया कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड फली होती है. काफी लोग कंप्लेन करते हैं पोस्ट कोविड, जब उनका फीवर ठीक हो जाता है उसके बाद भी उनको 10-15 दिन तक ऐसा लगता है कि उनको काफी वीकनेस है, खांसी आ रही है, बॉडी एक हो रहा है और कई बार लो ग्रेड फीवर भी फील करते हैं काफी लोग. डॉक्टर सिन्हा, एक सप्लीमेंट्री सवाल लेना चाहूंगी मैं इस पे. गैस्ट्राइटिस हो रही है, मोशंस ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ को लूज मोशन हो जाता है. तो इन तरह के मरीजों को हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और उनको कहते हैं आप पोस्ट कोविड ओपीडी में आए और वहां पर आके डॉक्टर की सलाह से या फोन पर डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करें. Dr. Sinha, there's a supplementary question that I'd like to take, but before that, there is a caller. विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से. जी पूछिए अपना सवाल. मैम मुझे पूछना था, कोविशील्ड की मेरे को पहली डोज लग चुकी है 24 अप्रैल को. अब नेक्स्ट डोज लगवाना मुझे कब है? क्योंकि कोई कह रहा है 84 days, कोई कह रहा है 2 months, कोई कह रहा है 3 months. और दूसरा मैम ये पूछना था कि 16 अप्रैल को मेरी मम्मी पॉजिटिव हो गई थी और 25 अप्रैल को नेगेटिव हो गई, बट उन्होंने क्या किया कि 4 मई को उन्होंने कोरोना का दूसरा वैक्सीनेशन ले लिया. तो क्या इससे मैम
कुछ असर पड़ेगा या क्या, मतलब क्या इसके इश्यूज हो सकते हैं? जी विनीत जी, ये बताइए कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी थी पहली डोज 24 तारीख को? मेरे को कोविशील्ड लगी थी मैम। कोविशील्ड। तो डॉक्टर खिलनानी? जी। हाँ, ये बहुत आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने पहला वैक्सीन लगाया है उसको, अब जो करंट जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो डायरेक्शन है, 84 दिन के बाद, 84 डेज के बाद आपको सेकेंड डोज लगना चाहिए। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है और आप उससे रिकवर कर रहे हैं तो किसी भी सूरत में 1 महीने के अंदर कोई भी वैक्सीन नहीं लगानी है, 1 महीने के बाद ही लगानी है। और अब जो करंट गाइडलाइंस हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो जो नेक्स्ट जो बूस्टर डोज है वो 3 महीने बाद लगना चाहिए, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद जो इम्यूनिटी होती है, ये हमें तय है कि कम से कम 3 महीने तक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। ये तो रही आपकी बात। आपकी माताश्री ने अब जो वैक्सीन लिया वो शायद सही नहीं था, उनको इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नुकसान उनको नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को बहुत धारणा है कि वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, वैक्सीन की वजह से बुखार होता है, फिर वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। वो जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं वो वैक्सीन की वजह से नहीं होते, वो इंसिडेंटल होता है। क्योंकि पिछले 2 महीने में जो प्रेवलेंस है कोविड की इतनी ज़्यादा रही है कि कई लोगों ने वैक्सीन लगाई और 4 दिन बाद उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो उसमें वैक्सीन का कोई दोष नहीं है। जी। अगर आपको पता है कि आप पॉजिटिव हैं या आपको बुखार हो रहा है, किसी तरह का भी बुखार हो रहा है, किसी तरह की भी एक्यूट इलनेस है, तो आप वैक्सीन को मुलतवी कर लें, यानी कि पोस्टपोन करें और 2 हफ्ते बाद लगाएं। ये मेरी आपसे सलाह है। धन्यवाद। डॉक्टर खिलनानी, एक और सवाल आपके लिए। ये दर्शक है हमारे सुनील कुमार, वो कह रहे हैं कि मेरे लंग से थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, डॉक्टर बोलते हैं कि टीबी की वजह से मल्टीपल पैराट्रैकियल लिम्फ नोड है। डॉक्टर खिलनानी, आपसे पूछना है कि ये कितना सीरियस मर्ज है और हम क्या करें? ये सुनील कुमार। ये कोरोना से संबंधित नहीं है। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो मुंह में से खून आना, जिसको हेमोप्टाइसिस हम टेक्निकल कहते हैं, उसके सबसे इम्पोर्टेंट कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है। उसके अलावा बहुत सारे कारण, न्यूमोनिया भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है। अक्सर अगर सिर्फ कोरोना है तो उसमें अक्सर खून नहीं आता है। अगर पहले कोई बीमारी रही है लंग की तो उसमें खून आता है। और ये जो पैराट्रैकियल नोड बोल रहे हैं, ये मीडियास्टाइनल, मतलब 2 हार्ट के बीच में जो जगह होती है उसमें जो लिम्फ नोड होते हैं वो कॉमनली उसमें बीमारी होती है। उसमें ट्यूबरकुलोसिस एक सबसे कॉमन कॉज होता है, और सार्काइडोसिस, लिम्फोमा, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये एक तो कोरोना से संबंधित नहीं है। दूसरा, मुझे सुनील जी को सलाह है कि ये आप इसकी जांच कराएं। और तरीके होते हैं कि पैराट्रैकियल नोड से भी हम बायोप्सी ले सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये टीबी है, सार्काइडोसिस है, ये किसी तरह का कैंसर है। आप घबराएं नहीं, आपको डराना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूँ कि जो आपको सिम्टम है उसका निदान यानी कि डायग्नोसिस ज़रूरी है, तभी आपका प्रॉपर इलाज हो पाए। Dr. Sanjeev, a supplementary question to the question that Ashwini had asked you earlier is that what is the term long COVID, which is now come to the fore? What are symptoms in long COVID? What exactly it is, and how should it be tackled? That's a very important question. Yeah, I was asking Dr. Sanjeev. I was asking Dr. Sinha. I'm sorry. Thank you. So, as I said earlier, that there are several patients, they have kind of symptoms even after recovery. So, they have complaint of mild grade fever, and they have complaint of loss of appetite, pain, abdomen, in epigastric region. Sometimes they have constipation, and sometimes they have kind of loose motions and cough also, like most of the patients have shortness of breath or cough also. So this is one thing. Another thing, like I would like to tell here, like many patients are positive and for after 14 days. If some people, though recent guidelines, they say there is no need for doing RT-PCR test for COVID even after 10 or 12 days if you are symptomatically all right. But some person are doing even after 14 days or after 3-4 weeks, they are getting positive. So it may be because of 2 reasons.
one reason, if they are having underlying comorbid state like diabetes or other comorbid state, or they are having uncontrolled blood sugars, or having cancer, and or they are on immunosuppression drug. So sometime if you do RT-PCR test in those patients, so you can get repeatedly positive even after up to 3 to 4 weeks. So that may be because of low volume of the viral load, or it may be because of that virus. So to rule out this, there is another test, we call it viral cultures, but routinely we don't do it. We do mostly for research purpose. हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, हरिश्चंद्र सब्रवाल देहरादून से। हरिश्चंद्र जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, वो पहले मतलब वो हुआ था जुकाम, बुखार, खांसी, तो दवाइयाँ दी थी वो, तो उसके बाद घर में आइसोलेटेड, तो ठीक हो गए, अब कुछ भी नहीं है मतलब जी। तो अब क्या करना चाहिए? अब आप ठीक हैं आइसोलेशन के बाद? ठीक है, खांसी भी नहीं है, 15 दिन और तो काफी दिन पहले की बात है, पिछले महीने, लेकिन अब जो है खांसी, बुखार, जुकाम कुछ नहीं है सर। डॉक्टर सिद्दीकी, आप बताना चाहें कि काफ़ी पहले पॉजिटिव हुए थे, अब ठीक है काफ़ी, क्या करें? बस बाकी एक खुराक हमें लगी थी, एक वैक्सीन होगी 7 अप्रैल को सर। हाँ, देखिए, ये जैसा आप बता रहे हैं, ये जो प्रोफेसर संजीव सर जैसा बता रहे थे कि देयर आर लॉन्ग हाउलर्स जो जिनमें कुछ सिम्टम्स उसके बाद भी रह जाते हैं। ये सिम्टम्स, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के लिए हमें सिम्टम्स आते रहते हैं, स्पेशली कमज़ोरी होती है, खांसी आती है, और मगर इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि उस समय सांस में दिक्कत नहीं आएगी, कोई ऐसी आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अगर 15 दिन से और 2 हफ्ते से ऊपर का समय निकल गया है तो ये और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे उसके बाद। तो ये थोड़े समय के साथ सारे सेटल हो जाते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से, अच्छा प्रोटीन रिच डाइट लेने से ये सारे में आराम पड़ जाएगा। आप निश्चिंत रहें हरिश्चंद्र जी, अच्छी डाइट लें और लोगों का भी हौसला बढ़ाएं, अपना भी हौसला बरकरार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। More questions are coming in. Anuj Dwivedi is asking, अगर कोरोना की कोई लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो कितना घातक हो सकता है? डॉक्टर खिलनानी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल बहुत लोग ट्रैवल के लिए इन इंडिया ट्रैवल और आउटसाइड इंडिया भी जब होती है तो कई लोग पॉजिटिव आते हैं। वो तब पॉजिटिव आता है जब कम्युनिटी में प्रिवलेंस रेट ज़्यादा होती है। तो ये इसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो व्यक्ति प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में हो, जब आदमी को कोरोना होता है तो उसके 2.5 दिन पहले टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ सकता है, तो फिर उस सूरत में उसको 2-3 दिन बाद फिर बुखार, सोर थ्रोट और ये सब शुरू हो जाता है। दूसरा ये होता है कि वो एसिम्टोमेटिक हो, जिनको पूरे अंतराल में कोई सिम्टम नहीं होता और वो पॉजिटिव होके और समय के साथ वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए उसको कोई भी इलाज की एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका डे 1 है जहाँ आप पॉजिटिव हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि अपना ध्यान रखें, अपना नॉर्मल, सबसे पहले तो आइसोलेशन, और उसके बाद अपना टेम्परेचर देखते रहें। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना चाहते हैं तो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। उसके आगे कोई टेस्ट कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुखार नहीं है, सोर थ्रोट नहीं है, बॉडी एक नहीं है, डायरिया नहीं है, आपका स्मेल ठीक है, आपका टेस्ट ठीक है, आपको सख्त सिर दर्द नहीं हो रहा, और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी अगर नहीं है, अगर आप 65 के से कम है, डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, या कोई और स्टीरॉइड्स नहीं ले रहे, तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको 10 से 14 दिन के लिए आइसोलेशन करना है, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर सिद्दीकी ने बहुत क्लियरली बताया, आपको फिर से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अपना ध्यान रखें और अपने ऊपर ध्यान रखें। थैंक यू। There are more questions, Dr. Khilnani. I'll come to you again. Arun Utpat is asking, last year I had an accident in which both femur bones were fractured, and after surgery large thrombosis was seen in right pulmonary artery, causing near complete occultation of the lumes, resulting in severe pulmonary hypertension. Treated for pulmonary thromboembolism
subsequently, and tablet Acetrom 2 mg was prescribed for 3 months only. Is it safe for me to take the vaccine having history of pulmonary embolism? Can vaccine trigger the clot issue? Age is 29. Very good question, very good question, because this person had thromboembolism, जिसको हम कहते हैं, जो कि which was provoked by automobile accident and fracture of the bones. तो इसका मतलब ये कि उनको इनहेरेंट टेंडेंसी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की नहीं है, और दूसरा ये कि जो उनका एंटीकोएगुलेशन था इन द फॉर्म ऑफ एसिट्रोम, वो भी वो ले चुके हैं, इसलिए उनको वैक्सीन लेने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन बहुत एक बड़ा तबका है जो ब्लड थिनर्स पे होता है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, कई लोग और तरह के भी एंटीकोएगुलेशन लेते हैं, तो उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन, उन सबको वैक्सीन लेने के लिए कोई किसी भी दवाई को रोकने की ज़रूरत नहीं है, और इनके लिए तो बिल्कुल ही कोई रिस्क नहीं है वैक्सीन लेने के लिए। थैंक यू जी। There's a caller who's joined us. Deepak joins us from Sri Ganganagar. जी दीपक, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर। मैम मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी 6 अप्रैल को मदर को वैक्सीन लगाई थी, अब इस बीच में क्या है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो अभी वैक्सीन कितने टाइम बाद लगानी चाहिए? अब रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई, नेगेटिव आ गई। कौन सी वैक्सीन लगाई थी आपने? कोविडशील्ड। जी डॉक्टर, कोविड की 2 वैक्सीन है दीपक, आपने कौन सी लगवाई थी? कोविशील्ड लगी थी मैम। और दूसरा मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं हूँ तो मुझे भी 28 अप्रैल को बुखार हुआ, मेरी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन अब नेगेटिव आ गई, तो मैं कब से पहली डोज लगवा सकता हूँ? जी डॉक्टर संजीव सिन्हा साहब, ये देखिए इसमें बहुत ही स्पष्ट गाइडलाइन आ गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसमें क्लियर कट दिया है कि अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 तारीख को होता है, 1 जून को अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसके 3 महीने बाद आपको वैक्सीन लेनी है। तो ये क्लियर कट गाइडलाइन आ गई है कि अगर आपको अंडरलाइंग कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो मिनिमम 3 महीने का गैप रखना है आपको वैक्सीन लेने के लिए। अब कोविशील्ड में है कि 3 से 4 महीने के बीच ले सकते हैं। और आपने जैसे बताया कि आपने रिसेंटली अपना टेस्ट कराया है और आप नेगेटिव हो गए हैं, तो आप भी 3 महीने के बाद अपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी कोविड वैक्सीन है उसको ले सकते हैं। जी एक उग्रसेन सिंह है, गाइडलाइन आ गई है। जी उग्रसेन सिंह है, वो कह रहे हैं कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज कितने दिन के अंदर लेना चाहिए, और अगर दूसरी डोज निर्धारित समय में नहीं ले पाते हैं तो क्या फर्स्ट डोज की जो इफिकेसी है वो समाप्त हो जाती है, या फिर हमको 2 बार लेना पड़ेगा, वैक्सीन की दोनों डोज लेने की ज़रूरत होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि कोवैक्सीन की 2nd डोज 4 to 6 वीक्स के अंतराल में लेनी चाहिए, और अगर कोविशील्ड की आप 2nd डोज ले रहे हैं तो 3 से 4 महीने के बीच में ले सकते हैं, 12 से 16 हफ्ते के बीच में 2nd डोज ले सकते हैं। इन्होंने तो ये तो कोवैक्सीन रिसेंट गाइडलाइन है। और अगर आपको किसी 4 to 6 कारण से आपको डिले हो जाता है तो आपको जैसे ही मौका मिलता है आप 2nd डोज लें, उसमें डिले ना करें। तो अगर 6 हफ्ते के बाद भी आप उसको ले सकते हैं, आपको एक ही डोज लेने की जरूरत पड़ेगी। 1 डोज आप पहले ले चुके हैं, आप 2nd डोज 6, 7, 8 हफ्ते तक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी डोज खराब हो जाएगी, बट एज पर गाइडलाइन आपको 4 से 6 हफ्ते तक जरूर ले लेना चाहिए कोवैक्सीन की 2nd डोज। Dr. Siddiqui, Sanjeev Kumar is asking on Facebook, he's saying he's 50 years old. He recovered from COVID about 2 weeks ago. However, his D-dimer test indicated that the level is 528. My other parameters such as CRP and IL-6 etc. are fine. The question is how the level of D-dimer will come down, and at what level D-dimer is regarded as comfortable. This is related to blood investigations. ओके तो संजीव जी, पहली चीज तो ये है कि ये टेस्ट बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इसके कुछ ट्रेंड्स को इम्पोर्टेंट हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। लेट्स टेक योर एग्जांपल। इसको, इन टेस्ट को आप खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करें, लीव इट टू द डॉक्टर्स। जहां तक आपके वैल्यूज की बात है, आपने बताया 500 नैनोग्राम पर ml होगा, शायद ये 500 समथिंग है जो अपर लिमिट होता है फॉर स्टैंडर्ड एज। 50 इयर्स एज तक लेते हैं कि ये इट हैज टू बी लेस देन 500 जो मोस्टली होता है।
528 जैसा आप लेवल्स बता रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी बैड, और इसके लिए आपको चेस करने की जरूरत नहीं है। आप जब नेक्स्ट लेवल कराएंगे ये डेफिनेटली उससे नीचे आ चुका होगा। ये भी एक इन्फ्लामेशन का मार्कर है और सीवियरिटी का मार्कर है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब ये लेवल से ऊपर, जस्ट ऊपर होने से घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर ये जितना ज्यादा ऊपर होता है उतना सीवियर होने के चांसेस रहते हैं, कि उतना ज्यादा अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उतना ज्यादा अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो इसमें एंजाइटी की जरूरत नहीं है। जैसे आपके दूसरे लेवल्स गिरे, ये भी धीरे धीरे थोड़ा सा समय लेता है और ये धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा जी। Dr. Sanjeev, on the question between the time gap between doses, there's a related question. Rishabh Dhamija is asking, what if we cannot take the second dose of Covishield between 12 and 16 weeks? Can it be taken within 6 months of the first dose? Within 6 months of the first dose, can the second dose of Covishield be taken if the time gap of 12 to 16 weeks between two doses cannot be maintained? Manoj, as per guideline, we have to take within 3 to 4 months. These are recent guidelines. But in some reason, if they are unable to take, then it can be delayed. Otherwise, they have to take second dose within 3 to 4 months. And I would like to quote here one of the publications that was recently published in Lancet, and that have shown that after first dose of Covishield, there is about 80+% of efficacy. So that's why government have delayed the second dose. This is based on the scientific reason. They have delayed up to 3 to 4 months, between 12 to 16 weeks. So it's better to take your dose between 12 to 16 weeks and don't delay much. प्रोफेसर खिल्लानी, दर्शक हैं हमारे अनिल मेहरा, वो करें 14 दिन के आइसोलेशन के बाद भी उनका RT-PCR पॉजिटिव आया है, उनको अपना आइसोलेशन कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या वो करें? पहली तो बात यह है कि उनको टेस्ट नहीं कराना चाहिए था। अगर उनको कोई सीवियर इलनेस, सिर्फ जिन लोगों को ICU की ज़रूरत पड़ती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, या और तरह की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें ये RT-PCR पॉजिटिविटी रहती है। कभी कभी किसी सेटअप में, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो कि पेशेंट को डायरेक्टली डील करते हैं, उसमें भी हम इंसिस्ट करते हैं कि वो नेगेटिव होने के बाद ही उनको जो है ना सर्विस में लिया जाए। वो इसलिए है कि थोड़ी सी भी अगर पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस जो पॉजिटिव आ रहा है, ये जिंदा वायरस है, अगर उसमें ट्रांसमिशन पोटेंशियल है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स में वो रिस्क नहीं ले सकते। अब मुझे नहीं पता कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है और वो क्या करते हैं और कितनी उम्र है और उनकी इम्यूनिटी स्टेटस क्या है। अगर ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और इनको पिछले 4-5 दिन से कोई बुखार, कोई सिम्टम नहीं है, तो उनको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो मास्क लगा के और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अपना काम कर सकते हैं और वापस नेक्स्ट टेस्ट इनको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि कई एसिम्प्टोमेटिक लोग पॉजिटिव रहते हैं हफ्तों तक, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, बहुत मेंटल एगोनी उससे होती है बिना बात के जी। ये भी एक थिंकिंग है, क्योंकि RT-PCR इतना सेंसिटिव टेस्ट होता है कि वो फ्रेगमेंट्स ऑफ वायरस, डेड वायरस को भी पिकअप कर लेता है। और सम रीजन ये लोग कुछ पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए ये रिकमेंडेशन बनी है कि आप अगर माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो 14 दिन के बाद किसी तरह का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो समराइजिंग है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी घातक हो सकती है या आपको सीवियर हो जाएगी या कोई ICU की जरूरत पड़ेगी या ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से तो पूरी एहतियात बरत के, पूरे मास्क के साथ और हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जी। Right. Dr. Siddiqui, Sukanta Biswas is asking that she got a vaccination slot and going to the vaccination center on Wednesday. What are the doctor's suggestions to follow before and after vaccination? She is 36 years old. If you could summarize here the contraindications that are there and the precautions that need to be followed before and after, because people have many queries on whether they can get vaccinated, what will be the side effects of vaccination. Yes. So Vishwas ma'am,
सबसे पहले तो you are right, there are lot of anxiety associated with people, especially after the French Nobel laureate who has given, in fact he was misquoted, and there has been lot of questions coming from all over whether to take vaccine or not. And then around the vaccination, like what precautions has to be taken. The precautions is very clear that in case there are certain symptoms of fever, cough, preceding illness, most likely you need to avoid that until unless you have this symptoms have settled. And if it is COVID, then you have to wait for at least, as government has said, in case of COVID, it has to be 3 months at least. Okay. But otherwise, you don't have to take any precautions. Regarding contraindications, contraindication as of now in India is pregnancy and lactation. So, and the age should be more than 18 years. So these are the contraindications. Plus, there are certain specific diseases which require special precaution, like those who are on blood thinners. In them, it can be the doctors, wherever the vaccine centers are running, they are also asking this question, and they will be telling regarding the precaution, or they will be giving you vaccine only if they find it appropriate. So don't worry, go there, get vaccinated. That's the message. It has to be, vaccination has to be taken in cases except for pregnancy and lactation, as per Government of India norms. And regarding post vaccination, what are the precautions? You don't have to worry much. There are people, in fact including me, there will be some body ache, some myalgia will be there, but don't worry, they settle within 1 or 2 days. Say, as earlier Professor Sanjeev sir has said, that there are times it is incidental that a lot of people develop COVID symptoms which prolong after getting vaccinated. So if the symptoms persist for some time, get yourself tested for COVID. Actually, that can be coincidental infection which was either sitting inside your body or which has happened immediately after this. हमारे दर्शक हैं राजा मननधार काठमांडू से सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर संजीव सिन्हा जी, आपसे सवाल है कि आई एम RA पेशेंट एंड बिकेम पॉजिटिव ऑन 4th of May. I am fine but weak. I am skipping Oncotrex medicine for last 3 doses, 15 mg once in a week. इनको आप सलाह दें कि ये दवा कैसे कंटिन्यू करें। ये आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? मैं ये रिमेटॉइड RA पेशेंट है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। 4 मई को ये पॉजिटिव हुए थे और ओंकोट्रेक्स जो दवा है वो पिछले 3 हफ्ते से नहीं ले रहे हैं। अब वो दवा ले सकते हैं नहीं? तो देखिए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो इनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था। जो आई अंडरस्टैंड, ही इज अ नोन केस ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस. He have got the infection, about COVID infection, 3 weeks back, and he is one of the drug for treatment of rheumatoid arthritis. Now he want to restart the drug. तो अगर ये ठीक हो गए हैं, इनके सिम्टम्स सब ठीक हो गए तो ये ड्रग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी कंट्राइंडिकेशन उसके लिए नहीं। Right, Dr. Khilnani, there's a question from Shefali that her husband is 39 years age, allergic to ibuprofen, Disprin and iron through IV. Is it safe to take COVID vaccination? So anybody who has got any kind of allergy, and he must report to the center that he is allergic so that they can be little more careful in monitoring. There is no contraindication. Especially the people who have had anaphylaxis. Anaphylaxis is a life-threatening reaction. One of the common drugs which causes is penicillin, and we all know about it. Such kind of patient, I would advise that not to take vaccine in school or in setting. Though the only patient who have had anaphylaxis should get their vaccination in a healthcare setup like hospital. Otherwise, for this particular person, if they have allergic to ibuprofen and some other drug, it's not a contraindication at all. Just boldly go and take the vaccine and nothing would happen. जी, डॉक्टर संजीव सिन्हा, एक सवाल आपसे है। सेंस इनका मेरे ख्याल से होगा, ये कोविड कंजक्टिविटिस कह रहे हैं कि कैसे हम ये मान के चलें कि जनरल कंजक्टिविटिस और कोविड कंजक्टिविटिस में अंतर है, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस से शायद इनका संबंध होगा। क्या वजह है और कैसे लोग इसको पहचानें और कितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करें? डॉक्टर संजीव सिन्हा साहब। देखिए, इस बारे में तो पेशेंट को देख कर ही हम लोग सलाह दे सकते हैं, क्योंकि कंफर्म डिजीज नहीं है ये, और भी कारण हो सकते हैं इसमें। जैसे मरीज को हाई ग्रेड फीवर है, या जैसे हम लोग साथ में ब्लड थिनर्स भी देते हैं जी, और उनके कारण भी हो सकता है रेडनेस हो,
या तो ये हमें देखना पड़ेगा क्या है. वी कैन नॉट कमेंट विदाउट गेटिंग द डिटेल्ड हिस्ट्री, क्योंकि जो म्यूकोरमाइकोसिस है इसको भी हम symptomatically तो we can say like if patient is having redness of eye, he is on long term steroids, he is having uncontrolled diabetes, या और उसके साथ सिम्टम्स हैं नाक नोज से आपके सिक्रेशंस आ रहे हैं या ब्लड आ रहा है, खांसी में अगर लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है तो खांसी में भी स्पुटम या ब्लड आ सकता है, और साइनस अगर इन्वॉल्व हैं तो आपके फेस में स्वेलिंग हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है. अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी. अगर आई में रेडनेस है तो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर के पास जाइए और वो इसकी जांच करेंगे और फंगल की जांच करेंगे, और फिर अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो इसका इलाज करें. There's a caller, Balvinder is joining us from Bihar. जी बलविंदर जी, पूछिए अपना सवाल. बलविंदर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? Okay, we'll try and connect with Balvinder in just a bit. There's a question for you, Dr. Khilnani. Ashish Saxena is asking, what is the efficacy of Covaxin and Covishield after second dose as per the data available for India? Okay, very good question. That Covaxin efficacy as per the phase 3 trial is 81%. That means as compared to the people who are non-vaccinated, the efficacy as in the trial is 81%. As far as the Covishield is concerned, the efficacy varies from 62 to 90%. When the interval between the two dosages was 4 weeks, as it was firstly given to all of us, and I also took that, and the efficacy was 62%. When the interval between the two dosages was increased, their efficacy increased. There was a small study which was done when the first dose was given as a half dose, the efficacy further increased to 90%. So summarizing it, Covaxin 81%, Covishield 62 to 90%. That is what the efficacy is. But it does not stop there. Somebody might say, "Fir kya fayda hua? Still I have a chance of infection." Yes, you have a chance of infection to the tune of 19% as compared to the Covaxin, and maybe 20 to 30% as compared to the Covishield. But with the Covishield, it was proven beyond doubt in this trial, and both done in Brazil as well as in United Kingdom, that when the vaccinated people got COVID infection, it was mild infection. They did not get severe infection and there were no deaths. So as far as the protection from the severe disease or death is concerned, it is close to 100% with this vaccination. So to my mind, the efficacy is close to 100%, because who is bothered about having fever for 2-3 days? We all get it everywhere, some viral illness, fever, body ache. One is worried about getting into the ICU, getting into the respiratory failure, and of course the mortality is a reality in COVID infection. So therefore, on that account, the efficacy is close to 100%. Thank you. डॉक्टर खिल्लानी, एक सवाल मेरा भी है कि caller has joined us. I think Prakash has joined us from Maharashtra. प्रकाश, आप अपना सवाल पूछो. जी, हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब. जी नमस्कार. मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट वुमन को जो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट वुमन को दे सकते हैं क्या, और नहीं दे सकते हैं तो कब देना चाहिए? डॉक्टर संजीव. जी हाँ, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा. एज पर गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है, उनके अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन नॉट गिव इन फीडिंग एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स, we cannot give vaccine because we have not done trial in this group. Second thing, there are trial going on in USA by the Pfizer, and they are giving a trial in this group, both feeding and pregnant women. So I think very soon we'll get the result and then we can decide. And one more thing I would like to tell here, that there is a trial going on in India between 2 to 18 years of age, pediatric age group, and this trial is recently approved by DCGI, and this trial have been started in 3 centers,
One is AIMS in New Delhi, AIMS Patna, and MIMS Nagpur, and where they will give the vaccine, co-vaccine in the child age group, and they added in 3 years group between 12 to 18, 6 to 12, and 2 years to 6 years, and according to that they will give the vaccine, and this is a new report from the DCGI. But one more thing I would like to add, that in certain countries, they are started giving in this vaccine the pregnant female. And one more thing I would like to add, if somebody is planning for the family, so it's better they take vaccine in advance, both the vaccine, and then they go for the pregnancy. जी डॉक्टर खिल्लानी, एक सवाल मैं जानना चाह रहा था कि एफिकेसी की जो बात होती है कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, लोगों के मन में ये होता है कि ये ज़्यादा काम करेगा, ये ज़्यादा काम करेगा। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि कई बार सवाल भी पूछे गए हैं कि हम कोवैक्सीन लगवाएं फिर हम कोविशील्ड लगवा लें। क्या लोगों को इस चक्कर में पड़ना चाहिए, या फिर जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो स्लॉट अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीन लगवाएं? डॉक्टर नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये बहुत बड़ी भ्रांति है। मेरे से शुरू से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो मैं उसका जवाब देता हूँ मैंने तो लगवा ली, दैट इज द आंसर। दूसरा ये है कि क्या कोवैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं, तो दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है एज फार एज द सेफ्टी इज कंसर्न। जैसे डॉक्टर सिद्दीकी ने भी बताया कि 2 से 5% केसेस में जो सिर दर्द होना और लोकल पेन होना या फिर थकावट होना या हल्का सा बुखार हो जाना, ये तो हर वैक्सीन से होता है। बच्चों को लगाते हैं मम्स की और MMR वैक्सीन, सबको बुखार होता है इस वैक्सीन से, उल्टा उससे तो कम ही होता है। लेकिन ये है कि दोनों की एफिकेसी तकरीबन बराबर है, सेफ्टी बराबर है, एफिकेसी बराबर है, और इफेक्टिवनेस जो होती है, इफेक्टिवनेस उसको कहते हैं जब वो कम्युनिटी में यूज होती है, उसके डेटा हमारे पास अभी नहीं है। आपको जो वैक्सीन सबसे पहले मिल जाए वो ही लगा ले, क्योंकि आगे अगले महीने या अगले 2 महीने में आप देखेंगे कि वैक्सीन की भरमार होगी, स्पुतनिक वैक्सीन होगी, जॉनसन वैक्सीन होगी, तब और कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। लेकिन समय की पुकार है, अगर आप वैक्सीन के इंतजार में 1 महीना वेट करें और उस बीच आपका कोरोना हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा। कोविशील्ड के बारे में डेटा आया है कि सिंगल वैक्सीन इज ऑल्सो इफेक्टिव। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन और कोविशील्ड की एक ही प्लेटफॉर्म है, एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड। जॉनसन की वैक्सीन 1 डोज देते हैं, कोविशील्ड की वैक्सीन 1 डोज देने से भी काफ़ी इम्यूनिटी, मतलब 80% इम्यूनिटी उससे मिल जाती है। तो ये सब धारणाएं और ये सब साइंस चलती रहेगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो पहले आपको जितना जल्दी वैक्सीन मिल जाए लगाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Dr. Siddiqui, Manveer Lohia is saying that he is having low-grade fever even after 28 days of recovery. He has CRP 7.63. What should I do? I tested COVID negative on the 7th day after the first day of symptom. Yes. So, मिस्टर लोहिया, एक तो पहली चीज़ है कि जैसा मैंने अभी बताया था और बार बार खिलनानी सर और संजीव सर बता रहे हैं कि यू नीड नॉट टू बी टेस्टेड इफ यू आर नॉट हैविंग सिम्टम्स, और वो दैट हैज़ टू बी डन इन दोज पेशेंट्स स्पेशली who are admitted in the admitted settings, who are requiring certain kind of support, certain kind of medication is being given to them because of their serious of illness. So first of all, getting negative test or positive test is not very important. What is important is have you recovered from symptoms, and what are those symptoms जिसके हम कहते हैं कि recovery हो गई है. First and foremost is fever, severe body ache. So fever और अगर severe weakness नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। यस, अब ऐसे मेरे पास बहुत सारे और आए हैं। हाँ, यस, हाँ, अभी जो बता रहे हैं ये लो ग्रेड फीवर जो होता है, बेसिकली मैम आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस फेज। क्या होता है कि माइल्जिया, थकान और कमजोरी ऐसी लगती है जैसे बुखार के साथ हरारत, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, हरारत सी रहती है। और जब मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि अपना टेम्परेचर नापिए तो उनका टेम्परेचर 99.9 से कम रहता है, सो 100 से ऊपर नहीं जाता है।
और ये स्थिति काफी समय तक बनी रहती है कुछ लोगों में। इसको भी हम ये कह सकते हैं प्रोलॉन्ग कोविड इफेक्ट होता है, बट इट रिकवर्स आफ्टर 10 to 15 days ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस। से फ्रॉम बाय 1 month यू आर मोस्टली फाइन। ठीक, जहां तक सीआरपी की बात है तो डोंट चेज इट, डोंट गो फॉर दीज टेस्ट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट गेटिंग इट, बिकॉज ये डेटा आएगा या तो वैक्सीन या तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो या फिर डी डाइमर थोड़ा सा एलिवेटेड हो, ये सिर्फ आपको मेंटल ट्रॉमा, एगनी और एंजाइटी बढ़ाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बी सेफ, ये कुछ नहीं होने वाला है आपको। थोड़ा सा समय है, किसी भी वायरल फीवर के बाद एक कन्वलेसेंट पीरियड आता है जिसमें आपका बॉडी पूरा फिर से वापस अपनी पूरी हेल्दी स्थिति में आने में समय लेता है। कुछ केसेस में इसमें इस तरह के थोड़ा सा समय लगता है, समय के साथ इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर फिर भी कंसर्न है आपको फीवर का, जो आप बता रहे हैं लो ग्रेड फीवर, ये इसको प्लीज गेट इट रिकॉर्डेड, चार्ट करिए, 3 से 4 बार दिन भर में चार्ट करिए एंड गेट इन कंसल्ट इन टच विद सम डॉक्टर एंड दे विल हेल्प यू आउट एंड आई एम वेरी श्योर यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग। ठीक है, एक और सवाल वही दोबारा पूछा जा रहा है। अभिनव किशोर हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो रात में पानी पीते हैं तो 20 दिनों में कभी कभार ऐसा होता है, 3-4 बार ऐसी स्थितियाँ बनती है कि हार्ट बीट उनकी काफ़ी बढ़ जाती है, तो क्या उन्हें काफ़ी परेशान होने की ज़रूरत है? डॉक्टर संजीव सिन्हा साहब, एक बार फिर से आप क्वेश्चन बताएंगे। अभिनव किशोर है, कह रहे हैं कि रात में जब पानी पीता हूँ तो हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ऐसा पैल्पिटेशन हो जाता 3-4 बार। ठीक है, ओके। तो अभिनव जी, ये आपका कोविड क्या आपको रिसेंटली हुआ था? आप कोविड से रिलेटेड पूछना चाहते हैं या एक जनरल क्वेश्चन ही है आपका? नहीं, सामान्य, ये बगैर जनरल नॉन क्वेश्चन कोविड है। पेशेंट हैं जी। हाँ, तो अभिनव जी देखिए, ये तो आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है कि रात में बार बार उठना पड़ रहा है और पानी पीने के बाद आपको पैल्पिटेशन होते हैं या हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो इसके लिए तो आपको पहले तो आप ईसीजी करा लीजिए और अपने नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है वहां पर जाकर कार्डियोलॉजिस्ट से भी आप राय लें इस बारे में। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक तो एंजाइटी भी हो सकता है या अंडरलाइंग कोई कार्डियक डिजीज भी हो सकती है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, आप अपने डॉक्टर से मिलें और कुछ टेस्ट होते हैं उसको करवा के उसके अनुसार दवाएं लें। Right. Dr. Siddiqui, a similar question to what was asked to you has been asked by Pankaj Chakravarti, that his relative completed 18 days after COVID detection. Now no fever persists but light cough exists. Now whether he is free from COVID and can he sit with other family members? Okay. So जैसा कि सारे गाइडलाइंस में बता रहे हैं कि अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव हुआ है या सिम्टम ऑनसेट, सिंपल, कई बार हम टेस्ट लेट कराते हैं तो उसके बाद तो हमें डे 0 लेना है, वो पहला सिम्टम्स जब आया उसके बाद से लेना है। तो जैसा बता रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि इनका सिम्टम ऑनसेट से 18 डेज हो गए हैं और इनको माइल्ड कॉफ है, सो एब्सोल्युटली फाइन। जैसा खिलनानी सर ने बताया था कि एक्सेप्ट फॉर सर्टेन प्रोफेशंस, फैमिली मेंबर्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, 10 डेज के ऊपर आप कर सकते हैं और उसके ऊपर भी एडिशनल प्रिकॉशंस कुछ लोग 7 डेज का भी करते हैं, तो वो भी पीरियड निकल गया। इज एब्सोल्युटली फाइन, रेस्ट अश्योर्ड, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से। और इसमें किसी तरह का ये कोविड के सिम्टम, अब कोविड नहीं बचा है, इसके कॉफ बहुत सारे लोगों में, बॉडी एक, वीकनेस, कुछ में गिडीनेस और कुछ में कॉफ, ये 3-4 सिम्टम्स काफी समय तक रहते हैं, मगर थोड़े समय के बाद से 15-20 दिन और लगते हैं, इसमें धीरे धीरे करके चला जाता है। ऐसा ही बाकी टाइम अगर सीवियर वायरल इलनेस होता है उसमें भी होता है, कॉफ थोड़ा समय लेता है जाने में, डोंट वरी। और अगर ये ज्यादा है, जैसे रात के समय खांसी ज्यादा हो जा रही थी, मे बी लोकल डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सम मेडिकेशंस फॉर दिस, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिस्क इन इंटरेक्टिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। प्रोफेसर जीसी खिलनानी साहब, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। ऐसा क्या हो गया पिछली वेव में, म्यूकोरमाइकोसिस या इस तरीके की चुनौतियां नहीं सामने आई, इस बार बढ़ रहा है? किस रूप में देखते हैं कि ये एस्टेरॉयड या फिर दवाओं से संबंधित है, या फिर कुछ हिस्सा इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर साफ सफाई, इन सब से भी संबंधित है? लोगों के मन में ये सवाल बड़ा आम आता है। नहीं, बिल्कुल सही है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस बहुत घातक बीमारी है, मौत की दर बहुत ज़्यादा होती है। और जब से हम पढ़ रहे हैं 30-40 सालों से, म्यूकोरमाइकोसिस
सबसे ज्यादा उन लोगों में होती है जिनको बिल्कुल ही अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, 400-500 तक जाता है, या कीटो एसिडोसिस हो जाता है, उनको होती है। या फिर उनको होती है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको स्टीरॉयड मिलते हैं उनको भी ये होती है। इस समय क्या हुआ कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स बहुत बड़े सेकेंड वेव के दौरान। और दूसरी बात है, मैं दुख के साथ कहूँगा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइफ सेवर होते हैं कोविड में, लेकिन उसके डिफाइंड इंडिकेशन होते हैं एज पर गाइडलाइन कि जिनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज होती है, निमोनिया होता है, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उनको स्टीरॉयड देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओवर द काउंटर मिलने लग गया। अच्छा भाई आपको कोरोना हो गया, बुखार हो गया, ये लो, बड़े बड़े डोजेजेस में स्टीरॉयड मिलने लगे। और जब भी स्टीरॉयड दिए जाते हैं किसी मरीज को तो ब्लड शुगर पे हमेशा ध्यान दिया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको डायबिटीज का पता नहीं था, उनको कोरोना हुआ, उनको स्टीरॉयड मिले और फिर शुगर 400-500 पहुंच गई, न उन्होंने टेस्ट कराया, सीधा ही वो जब उनको ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस हो गया तब वो उनको पता चला कि उनको डायबिटीज भी थी और डोजेजेस बहुत ज्यादा थे। एक दूसरा कारण जो हो सकता है कि कोरोना, वो उसका कोई हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण अब तक नहीं है, कोरोना जो है ना वो टी सेल इम्यूनिटी को हर्ट करता है जी। तो म्यूकोरमाइकोसिस उसी को होता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये कहा जाता है कि शायद वो टी सेल इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोरोना ज्यादा इस बार ये चुनौती आ रही। हम तीसरी बात है अनहाइजीनिक कंडीशन, शुक्रिया कहेंगे आप तीनों मेहमानों को। यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म है, आप अगर मास्क यूज करते हैं और उसको रेगुलरली धोते नहीं है और एक ही मास्क 15 दिन तक पहनते हैं तो उसमें जो उसके जो डर्ट होती है उससे भी फैलने की इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरी ये सोच है। जो ये कहा गया कि ये जो ऑक्सीजन, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन डेस्परेट यूज करी है उस वजह से म्यूकोर हो गया, उसका कोई भी प्रमाण नहीं है, इस धारणा में नहीं जाए। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक तो डरे नहीं, अगर आपको कोरोना अपना, अगर आपकी उम्र 35-40 से ऊपर है, ब्लड शुगर right, Dr. Khilani, we'll have to end this episode of Dr. Speak here. Thank you, Dr. Khilani. Thank you, Dr. Sinha, and thank you, Dr. Siddiqui, for having joined us. That's all the time that we have for this, but this is a show that we bring to you at least thrice every day. So if you have any questions, do remember to call us and ask them or write to us on our Facebook page. तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपकी कोई भी शंका समाधान हो तो ये कार्यक्रम रोज आता है। और सबसे बड़ी बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं जब आपकी ज़रूरत हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन जहां भी ज़रूरत हो कोरोना पेशेंट्स की, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इमोशनल कनेक्ट भी उनसे ज़रूर रखें। कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।